Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. I welcome you in DPS online class. My name is teacher Iram Noreen. I am your GK teacher. I will teach class 3. Let's discuss our today's objectives. Students, by the end of the lesson, you will be able to define gas and describe property of gas. Before going to start my lesson, I will show you a picture and I will ask some question about it. Yes. Tell me student, what is this? This is a classroom. What are the things present in the classroom? Tell me. Yes. Table, chair, board, books, bags, whiteboard, clock, window, teacher and student. There is something also, but you can't see something. It doesn't mean that it is not here. In fact, you are surrounded by things you can see. What are these things? These things are called gases. So, our today topic is gas. In our previous lesson, I have told you that there are three forms of matter: solid, liquid and gas. We have discussed two before, solid and liquid. Now I will discuss here gas. Let's define gas. Gas is a state of matter that has no definite shape or volume but has mass. Students, I have taught you that gas जो है उसकी कोई ख़ास शेप या ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन उसका मैस होता है. Let's see property of gas. There are some property of gas. In a gas, atoms are not close to each other. गैस में molecules एक दूसरे के करीब नहीं होते. In this picture you are watching that in first portion molecules are very close to each other. That is solid. In second portion molecules are slightly close to each other. That is liquid. But in third portion molecules are far away from each other. So that is a gas. So in gas molecules are far away from each other. Gases में molecules एक दूसरे के करीब नहीं होते, वो एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं. In a gas the atoms move freely at high speeds. इसके अंदर atoms और molecules जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते. They don't vibrate, they don't fix, but they are moving all the time like this. Like liquids, gas also takes the shape of container. Students, I have told you that कि लिक्विड जो है उसकी ख़ास शेप नहीं होती, इसे हम जिस कंटेनर में जिस बर्तन में डाल दें उसी की शेप ले लेता है. जस्ट लाइक दिस गैस को भी जब हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे ये उसकी शेप ले लेगा, क्योंकि गैस की कोई ख़ास शेप नहीं होती. आपने अक्सर देखा होगा स्मोक या एयर तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपने स्मोक देखा हो उसमें भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, उसकी ख़ास शेप नहीं होती. जो हमारी एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. आई विल टेल यू देयर नेम वन बाय वन आफ्टर दैट. इफ़ अ गैस इज़ नॉट इन अ कंटेनर इट विल स्प्रेड आउट इन एयर क्विकली एंड फ्रीली. जब किसी भी गैस को जब हम कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, ऊपर से क्लोज़ कर देते हैं, तब तो वो इसके अंदर ही रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं वो क्या करती है, फ़ौरन इधर उधर फैलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि गैस की खासियत है कि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते. तो गैस मॉलिक्यूल क्विकली और फ्रीली होकर मूव करना शुरू कर देते हैं. There is a major difference between the way gases and liquids fill that space. When you put liquid into a container, it fills the bottom first and then fill the rest of the container from the bottom up. Dear students, गैस और लिक्विड में एक ये डिफरेंस है कि जब हम दोनों को किसी कंटेनर में डालते हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड है वो सबसे पहले बॉटम पे अपनी जगह लेता है, आहिस्ता 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 वो कंटेनर को भरना शुरू कर देता है. उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है. पहले सबसे पहले लिक्विड जो है वो बॉटम को फिलअप करेगा और बाद में रेस्ट ऑफ द कंटेनर को वो फिलअप करेगा. बट इन द केस ऑफ गैस, व्हेन गैस फिल्स a container, it spread
इवनली। किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को डालते हैं तो आप देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर किए हुए हैं। उन्होंने अपनी मूवमेंट को रोका नहीं है और इसी वजह से उसका कोई ख़ास वॉल्यूम जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता और ना ही ये एक जगह पर फिक्स होते हैं। इनको किसी भी कंटेनर में डाल दें, ये बॉटम को फिलअप नहीं करेंगे बल्कि फ़ौरन ही इधर उधर फैलना शुरू कर देंगे। In second picture, you are watching that you can see this happening when you blow up a balloon. किसी भी बलून में जब आप गैस फील करते हैं आप देखते हैं कि गैस जो है जैसे बलून के अंदर जाती है तो बलून एकदम से फूलना शुरू कर देता है। गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक ही स्पीड के साथ और एक ही तरतीब के साथ उसके अंदर फैलना शुरू कर देते हैं। वो पहले बॉटम को फिल नहीं करता बल्कि जब भी गैस को बैलून के अंदर हम फिल करते हैं वो एकदम से हर तरफ फैलना शुरू कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह बलून जो है फिलअप हो जाता है और इसी तरह जब बैलून के अंदर से एयर जो है वो बाहर निकलती है तो बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई तरतीब नहीं होती, वो किसी भी तरतीब के बगैर उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये था एक डिफरेंस था लिक्विड और गैस के किसी भी कंटेनर को भरने का। क्लास छोटा सा लेसन था, इसकी छोटी सी हम असेसमेंट देख लेते हैं। डिफाइन गैस। जी, जस्ट डिफाइन द गैस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया है कि गैस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो गैस क्या है हमारे लिए? टेल मी। गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ डेफिनेट मैस बट नॉट शेप, नो वॉल्यूम। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता और उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती। हाँ, ये लिक्विड की तरह किसी भी कंटेनर में अपनी जगह लेता है लेकिन लिक्विड की तरह फिलअप नहीं होता बल्कि इसके मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मूव करते रहते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ गैस? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द शेप ऑफ गैस? इफ़ यू लुक द गैस मॉलिक्यूल्स, जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं होते जिसकी वजह से इनकी कोई ख़ास और स्पेशल शेप नहीं होती। विच गैस डू वी यूज़ फॉर ब्रीदिंग? जी, ब्रीदिंग के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? आजकल तो आपने इस गैस का नाम बहुत सुना होगा। यस, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। आपने 2 और 3 क्लास में पढ़ा था ना इसके बारे में कि हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं। ये आपने याद रखना है। आपको पता है ना आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब किसी को वायरस का अटैक होता है तो ये जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से कम होती है। तो उसमें हमें ऑक्सीजन जो है वो लेना पड़ती है आर्टिफिशियली। तो ये ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से हम अलाइव हैं। लेट्स सी होमवर्क। अब हमारी छोटी सी इस असाइनमेंट का, छोटी सी हमारे वीडियो लेसन का होमवर्क क्या हो सकता है? यस, ड्रॉ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस ऑन योर नोटबुक। आपने क्या करना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पर। कितने डिस्टेंस पर होते हैं वो एक दूसरे से, लिक्विड और सॉलिड की निस्बत वो कितने डिस्टेंस पर हैं, ये आपने उसके अंदर ड्रॉ करके हमें बताना है कि वो एक दूसरे के क्लोज़ हैं, वेरी क्लोज़ हैं, टाइटली पैक हैं या एक दूसरे से दूर हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस डू प्लांट्स यूज़ फॉर मेकिंग देयर फूड? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं वो आपने लिखनी है। अब वो सर्च करेंगे अपनी साइंस की बुक से, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। को विच गैस डू प्लांट्स यूज़ फॉर मेकिंग देयर फूड? प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं ये आपने बताना है। और ये भी बताना है कि प्लांट्स जो है वो हमें कौन सी गैस देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपने लिखने हैं अपनी कॉपी के ऊपर और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ड्रॉ करनी है। व्हेन यू कम बैक इन आवर स्कूल देन आई विल चेक फ्रॉम योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।